8 ਤੋਂ 10% ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, PR ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਅਗਲਾ ਬੈਨ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਪੋਰਟਲ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਫਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, 2-4 ਲੱਖ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PR ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਇਲਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਆਇਲਸ ਰੇਲਵੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਆਪ ਲਾਉਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, TV ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ। ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ 8 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। बहुत बढ़िया बर्निंग टॉपिक है सर जो आपने उठाया है, और रियली थैंक्स आपने ऐसा कोई टॉपिक लिया है जिस पे रियली मतलब अगर मैं बात करूं तो शाम हो सकती है। देखिए माय डियर, बच्चा एब्रोड जाना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे आपने बताया ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं, वो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पता ही लगता पीछे कौन बैठा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कोई दफ्तर तो है नहीं। दूसरा बहुत सारा बच्चा जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देता है, उसमें से यूनिवर्सिटी एंटरटेन तो कर लेती है, लेकिन बाद में जब बच्चे का फाइल लगाने का टाइम आता है, अब बच्चे ने तो कोई स्टडी नहीं कर रखी ना इस बारे में कि भाई वीज़ा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे कैसे रिक्वायर्ड है। एक आधा बच्चा सक्सेस भी हो जाता है कि चलो एम्बेसी की चेकलिस्ट निकाली, उसमें इसके हिसाब से अपनी फाइल बना ली और डाल दी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चक्कर में फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में, और बाद में उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। फिर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो अब नेचुरल सी बात है, वो जब रिफंड प्रोसेस में आता है तो बच्चा फिर फंस जाता है कि 6-6 महीने 8-8 महीने से बच्चे की फीस पर फंसी रहती है। चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल पे चला जाए और चाहे बच्चा डायरेक्ट अप्लाई कर ले। और जैसे आप कवर कर भी चुके हो कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाएगा बच्चा, तो उसकी बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं होते, वो बड़े एक नॉमिनल चार्ज करता है कि वो आपको सर्विसेज दे रहा है। और जितनी फीस आपने यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट पे की है, उतनी ही फीस आप एजेंट कंसल्टेंट जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू पे करोगे। मैं कनेडा जाना जी, मैं वैस्टਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਰੀ। ਉਹ 10 रुपये जो कट के ਤੁਹਾਨੂੰ 1 रुपया मिलता है, 10 मिलते हैं, पता नहीं, पर मेरे तो 10 ही लगने ना। जी, मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्ट स्टूडेंट अप्लाई करे तब भी वही फीस जानी है, कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करे बट जेन्युइन कंसल्टेंट तब भी उतनी जानी है। आपको यूनिवर्सिटी ने कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी है, लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा स्मार्ट बन जाते हैं और वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, इसी चक्कर में वो फंस जाते हैं, बाद में उन बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट होता है। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, पर 99% ठगी है। ठगी मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये बड़ा लंबा टॉपिक है सर, इस पे मेरे को बीच में ठोकना मत जी। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है 2-3 बार रिफ्यूज लेके, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे था दिल्ली में, और वो साउथ का बच्चा था, 15 साल का उसका वर्क एक्सपीरियंस था, स्मार्ट बन के उसने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, रिफ्यूजल लेके वो मेरे को दिल्ली फेयर में मिलता है। सर लंबा लेट गया जाके,
कि सर मतलब मैं तो अपने आप को ना बहुत स्मार्ट समझता था और मैंने ये फाइल लगा ली, बचा लो बचा सकते हो तो मेरे को वीज़ा चाहिए। सर आप उसका अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका पढ़ा भी है, उसका टेस्टिमोनियल भी पढ़ा है, वो चीख के चिल्ला के बोल रहा है कि डायरेक्ट अप्लाई ना करें, डायरेक्ट अप्लाई ना करें, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई किया तब भी उतनी फीस दी, वेस्टर्न और अप्लाई की तब भी उतनी फीस दी, फायदा कुछ नहीं हुआ बल्कि ज्यादा टेंशन में आ गए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये नहीं कहता कि भी आप रिसर्च मत करो, आप पूरे रिसर्च करो, ये आपको राइट है, बट मैं चाहता हूं कि पूरे रिसर्च करके एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाओ। जब आप 2 4 5 कंसल्टेंट के पास जाते हो, रिसर्च आपने कर रखे, तो आपको पता लगेगा कि कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ये चीज होनी बहुत जरूरी है कि भाई एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास गए, और जेन्युइन कंसल्टेंट के पास आपको, ये आपका राइट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ कैसे लग रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट अप्लाई करो और कल ने आप फंस जाओ। ठीक है, आप रिसर्च करें, जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे फाइल लगवाएं, थोड़ी बहुत सर्विस चार्ज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा तो एक आप और मैं डायरेक्ट ITR भर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन सर ये देखें ना कि आपने और मैंने कोई इनकम टैक्स थोड़ी पढ़ रखा है। आप समझे, उसके लिए हमें CA के पास, प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है। तो सेम हेयर, आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल है, जिसने स्टडी की है इस बारे में, जो इमिग्रेशन लॉयर हैं, उन्होंने हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन है, बार बार वो अब्रॉड गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के उन्होंने क्या नाम है फैम ट्रिप लिए हैं, इधर से हाई कमीशन से ट्रेंड है, यूनिवर्सिटी कॉलेज से ट्रेंड है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कंसल्टेंट, प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास ही हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने फ़ायदा उठाना चाहिए। डायरेक्ट अप्लाई ना करें किसी डायरेक्ट पोर्टल पे, या डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज पे तो फंसेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया वेरी सुन एक बहुत बड़ा चेंज करने वाला है, जब ये डायरेक्ट की बात ही चल रही है। तो बीइंग ए मेंबर हमने रिकमेंडेशन भी दी है हाई कमीशन को कि आप डायरेक्ट स्टूडेंट को जब आप यूनिवर्सिटी लेती है तो वहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट फेक डॉक्यूमेंट डाल के स्टूडेंट के नाम से डाल देते हैं। यूनिवर्सिटी को लगता हो डायरेक्ट स्टूडेंट आ रहा है तो कॉलेज को इंसेंटिव या मतलब कंसल्टेंट को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बच्चे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, पाया गया है कि उनके फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए कंसल्टेंट के थ्रू। तो आने वाले टाइम में आपको ऑस्ट्रेलिया में फाइल डालनी है तो डायरेक्ट की बजाय किसी न किसी कंसल्टेंट के थ्रू डालनी पड़ेगी। यहां तक एम्बेसी और यूनिवर्सिटीज अवेयर हो चुकी हैं। तो माय डियर, मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्ट की बजाय किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट का आप फायदा उठाइए और उसके थ्रू फाइल लगाइए। वो आपके एंड तक मतलब आपकी PR सेटलमेंट तक आपकी हेल्प करेगा। मैं एक केस कई बार इस मंच ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੱਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਐਡ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਐਡ ਪਾਈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਫਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਫਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋੜਾ, 2 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੋ, 8 ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਤੀ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਮਾੜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰਿਆ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਕਾਂਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ PR ਕੀ ਮਿਲਣੀ, ਬੈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। $5500 ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜਨੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ, ਆਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਥੇ कित्थे ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ कित्थे कित्थे दे रहे हैं? जी, एजुकेशन फेयर इन हाउस होने जा रहे हैं जी। हमारे कुछ हो चुके हैं और कुछ अभी पेंडिंग है। तो 13 अप्रैल वेडनेसडे को बठिंडा में एजुकेशन फेयर होने जा रहे हैं, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप
सारे कंट्रीज़ की काउंसलिंग दी जाएगी। IELTS वाले स्टूडेंट्स को भी मैं खुद में मिलना चाहूँगा अगर वो ऑन स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं या असेसमेंट करवाना चाहते हैं। आप चाहे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप रिफ्यूज़ हो चुके हैं, चाहे आपका गैप है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे मैरिड है, हर एक स्टूडेंट का कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में वीज़ा लग सकता है। तो 13 अप्रैल वेडनेसडे को आप बठिंडा मिल सकते हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में, जो कि अजीत रोड पे है, अपना घोड़ा चौक के पास। इसके अलावा 16 अप्रैल सैटरडे के दिन करनाल मुगल कनाल में वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में एजुकेशन फेयर होने जा रहा है। 11 बजे से 3 बजे तक ये फेयर रहेगा। 20 अप्रैल को वेडनेसडे के दिन कुरुक्षेत्र में आप वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, क्योंकि एजुकेशन फेयर है। 26 अप्रैल को ट्यूसडे के दिन अंबाला विकास विहार में एजुकेशन फेयर होने जा रहा है वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में। और 28 अप्रैल को थर्सडे के दिन चंडीगढ़ में वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस 35C में निक बेकर के ऊपर ये वेस्टर्न ओवरसीज़ में एजुकेशन फेयर होगा। और लास्ट इस महीने का 30 अप्रैल सैटरडे के दिन सोनीपत सुभाष चौक वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में एजुकेशन फेयर होगा। अगर आप अपकमिंग इनटेक में अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपने IELTS की है या नहीं की है, काउंसलिंग मस्ट है जी, ठीक है। जिन बच्चों ने IELTS नहीं की है या PT नहीं की है, उनको भी काउंसलिंग लेनी चाहिए, फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि उनको कितने बैंड की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जब तक उनका IELTS का स्कोर आएगा तब तक वो अपना ये डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। जिन बच्चों ने IELTS या PT कर रखी है उनके लिए तो मस्ट है। सिंगल है, मैरिड है, फ्रेश है या रिफ्यूज है, हर एक बच्चे का वेलकम रहेगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मिल सकते हैं। साथ साथ में बात चल ही रही है, जो बच्चे IELTS या PT कर रहे हैं, तो मेरे एक रिक्वेस्ट है कि IELTS रियलिटी टेस्ट या PT रियलिटी टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 15,500 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है फाइनल एग्जाम की, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना ये पैसा खराब कर देते हैं। तो हमने एक बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है IELTS रियलिटी टेस्ट और PT रियलिटी टेस्ट, जिसमें आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को रिमूव करेंगे। हम आपको एक्चुअल असेसमेंट बताएंगे कि भाई आप यहाँ स्टैंड करते हैं, अभी आपको कितने बैंड स्कोर की और रिक्वायरमेंट और कितने टाइम की है, आपका रीडिंग में क्यों कम आ रहा है, राइटिंग में क्यों कम आ रहा है, या लिसनिंग में या स्पीकिंग में, तो सारी असेसमेंट करके आपको देंगे। 14 अप्रैल को कैथल में होने जा रहा है और 21 अप्रैल को चंडीगढ़ में होने जा रहा है। इसके अलावा जो अदर डेट्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं IELTSrealitytest.com पे जाके। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ US ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂट्स नहीं हो रही हैं प्रॉपर तरीके दी कि आ जाओ, खुल गए ने कॉलेज? देखिए सर, अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में जैसे जर्मनी में थोड़ा सा अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन मास्टर्स में अपॉइंटमेंट मिल रही है और इवन के बैचलर्स में भी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो कम अपॉइंटमेंट कर रखी है उसके पीछे रीज़न कोविड भी एक रीज़न है कि वो धीरे धीरे कम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। बट कुछ यहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी चल रही है, कुछ बाहर के जो बीच में पर्सन आ गए, उन्होंने अपनी फेक डॉक्यूमेंट अपनी IDs डाल के ले रखी हैं, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे अदर डेस्टिनेशन भी यूरोप में ओपन हुए हैं, जैसे ग्रीस है। ग्रीस का सक्सेस रेट आज की डेट में हाई है। अगर आप ग्रीस चले जाएंगे तो ग्रीस भी यूरोप में है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नीदरलैंड एक आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। डेनमार्क आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। स्विट्जरलैंड आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। फिनलैंड है, फ्रांस है, माल्टा है, हंगरी है। ये सारे कंट्रीज हैं जो आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज में ओपन है। इसके अलावा जो बच्चे डायरेक्ट UK या डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, तो उनके पास भी एक ऑप्शन है। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो नॉन GT हैं, उनका स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो सर वो वाया सिंगापुर जा सकते हैं। सिंगापुर में बहुत सारे कॉलेज हैं जो क्लेम करते हैं कि जी 1 साल यहाँ पढ़ो, उसके बाद आप वहाँ जाइए। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा जेम्स कुक यूनिवर्सिटी की। जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जो कि क्वींसलैंड में है। उसका एक कैंपस सिंगापुर में है। आप वहाँ पे 1 सेमेस्टर कंप्लीट करके आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, आपके पास फंड पुराने नहीं हैं, आपके पास बैंड स्कोर कम है, परसेंटेज कम है, थोड़ा बहुत गैप हो गया है, तो आप सिंगापुर जा सकते हैं। 1 सेमेस्टर वहाँ कंप्लीट करिए। 85% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, प्लस में आपको अच्छे नंबरों से पास होना पड़ेगा। इसके बाद आप सिंगापुर से जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे गए हैं जिन्होंने वहाँ से जाके ट्रांसफ़र लिया है। ऐसे ही अगर UK आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे, तो आपको मैं 2 ऑप्शन देना चाहूँगा। बहुत ऐसी कैटेगरी है बच्चों की जो डायरेक्ट नहीं जा पा रही लेकिन उन्होंने UK जाना है। पहला ऑप्शन है यूनिस्मार्टर। यहाँ पे हम एक यूनिवर्सिटी का आपको कोर्स कराएंगे और 3-3.5 महीने का कोर्स है। ऑनलाइन आपको पढ़ना होगा। बाहर के यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स भी पढ़ाएंगे, साथ साथ में इंडियन टीचर भी होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दिन की क्लास होगी। और IELTS भी मत करिए, यूनिवर्सिटी का ही टेस्ट है, वो टेस्ट क्लियर कर लीजिए। आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में UK का वीज़ा आ जाएगा।
और अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो जितनी फीस आपने पे की है वो भी रिफंडेबल है। अच्छा, यूनिवर्सिटी बोलती है कि अगर आपका यूके का वीज़ा नहीं लगता, आपने एक सेमेस्टर यहाँ पढ़ लिया, आप फीस वापस ले लीजिए हमसे। तो इससे बढ़िया ऑप्शन और क्या हो सकता है? अगर आपका गैप है, क्यों नहीं तुरदा इधर ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। जी जी, बच्चे आ रहे हैं हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं कि यहीं से जहाज में पहले दिन ही बैठ लें। तो लेकिन जो बच्चों को समझ आ रही है, जिन बच्चों के पेरेंट्स को समझ में आ रही है, वो बच्चे इसको ऑप्ट कर रहे हैं। जो बच्चे की परसेंटेज कम है, गैप ज़्यादा हो गया है, वो डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप यहाँ पे एक सेमेस्टर पढ़ लीजिए। फीस आपने जो पे की है 3-3.5 लाख रुपए फीस है, 4 लाख रुपए मैक्सिमम होगी। आपका वीज़ा नहीं लगता, आपकी फ़ीस वापस मिल जाएगी। ये वेस्टर्न ओवरसीज़ आपको श्योर कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलती है कि वो आपको वापस दे देंगे। इसके अलावा आप यहाँ से दुबई जा सकते हैं। 1 साल दुबई लगाइए, बैचलर्स में आप गए, 1 साल दुबई लगाइए, 1 साल के बाद आप यूके में ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट किसी कंट्री में नहीं जा पा रहे तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। थोड़ा सा हटके है, यूनिक है, थोड़ा सा आपको रास्ते से थोड़ा सा दूर होके और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। वाया आप इसको बोल सकते हैं। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। देखिए सर, जो बच्चा क्वालिफाई नहीं करता, यहाँ से सिंगापुर बहुत सारे ऐसे बच्चे जाते थे। अब जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं तो एक ऐसे कंट्री में भेज रहा हूँ कि भाई आपने वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया निकल सकते हैं, यूके निकल सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस वहाँ पे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिंगापुर गए वहाँ से अपना करियर स्पॉइल करके वापस आए हैं। ऐसे साइप्रस भी गए हैं, ऐसे अदर कंट्रीज़ में भी गए हैं। तो आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट, मुझे लगता है आप जैसे चैनल्स के कारण बड़े अवेयर भी हो रहे हैं। आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है जो टाइम टू टाइम अवेयर होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइमली अपनी आयल्स कर लेते हैं, टाइमली अपना एजुकेशन में स्कोर अच्छा लेके अब्रोड जा रहे हैं। लेकिन स्टिल ऐसी है पॉपुलेशन, लेकिन एक तबका यूक्रेन गया सी हुण। जी, वो देखो, वो एक ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। MBBS करने वहाँ जा रहे थे बच्चे। चलो MBBS तो फिर भी ठीक है प्रदीप जी, मैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਨ। ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। वो जहाज में बैठना चाहते हैं या यूक्रेन से आगे निकलना चाहते हैं, तो उस पर तो मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास एक जेन्युइन स्टूडेंट आए, जिसको जेन्युइन उसकी इंटेंशन हो पढ़ने की, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अच्छे कंट्री में पढ़ना चाहता हूँ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी, थैंक यू। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੇ ਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So we are done with one other IELTS test at Jalandhar. I have a candidate who has just come out after giving her examination. Ma'am, what's your name? My name is Aarti Devi. My name is Girisha. My name is Pinku Kumar. My name is Sonali Sharma. Kuljeet Kaur. My name is Amandeep Kaur. And what's your name, dear? My name is Kulvinder Kaur. So both of you coming from which place? I'm from Jalandhar. I'm also from Jalandhar city. I'm from Hoshiarpur. I am from Ludhiana. I'm from Hoshiarpur. I come from Noor Mahal. So very simple question. How was your overall experience after appearing into this IELTS test today? My overall experience is very good. I think this test is going to boost my confidence in the final exam. It was a very nice experience. Experience was brilliant. It was just great experience. The overall experience after appearing in this exam is really amazing. मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज मिली कि कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है कैंडिडेट्स के लिए। फ्रेंड ने बोला था, मैंने
तो बोला था कि मैं चलो पेपर दे देता हूँ, तो मेरे दोस्त ने कहा भाई तू ट्राई कर ले। मेरे को डर लग रहा था उस टाइम कि मतलब कि पेपर दूंगा कर मेरा IELTS नंबर ना है, तो मेरे को डर बहुत था। फिर दोस्त के बाद ALT टेस्ट है तो ये ट्राई करके देख, तो उसमें किया, मेरा बिल्कुल डर हट गया, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। It was really a wonderful experience. Even all the staff members of Western Universities are really very cooperative, and it really gives us a feeling of that we are sitting in a real exam, and definitely it will boost our confidence level when we will going to sit in a real exam. So it is really helpful and great step by Western Universities. I was not thinking like these kind of facilities will be here, because I was thinking like if we are paying the less fees, there will be not much facilities which are mostly provided by the other institute. So the facilities are really good, and another thing is that the team was very cooperative. They cooperate us within each and every time. Also the test happened like in a very good manner, so that we can think the like a real exam will be going to same like this. I'll just come back to you because it's a time based process, and बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टेस्ट है उसका एक स्टेज है कि इस समय पे ये हो जाएगा, उस समय पे हो जाएगा। क्या लगता है टाइम मैनेजमेंट फॉलो हुआ था? well, and I think time management is very important, and time management बहुत अच्छे से हुई because क्योंकि जितना हम सोच रहे थे expectation से ज़्यादा था, is more than expectations, and also जो हम टाइम मैनेजमेंट्स के साथ चल रहे थे उसमें ये था कि हमको प्रेशराइज था कि हम अपना टास्क पूरा कर सकेंगे या फिर अपनी रीडिंग पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मतलब ये सारा सिस्टमेटिक वे के साथ था कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि 1 मिनट भी हमारा वेस्ट किया है। Do you think we were able to create what we committed, the real exam environment? हाँ, the atmosphere was same ambience you people are providing, and you really stay on your words. Whatever you have committed, you really did it. The environment that we saw here, it was really amazing. Like all the staffs are like doing their work very quickly in a very clean manner, and another thing is that they are cooperating with each other. So I think Western Overseas will be like greatly can do this thing. Thanks for the appreciation, mate. Mock test का setup और इस setup में क्या compare करते हो? बहुत फ़र्क है। वहाँ पे हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं टाइम टू टाइम, बट यहाँ पर एकदम अलग सा एटमॉस्फेयर है जैसा कि रियल एग्ज़ाम में होता है। सो मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ आफ्टर द एग्ज़ाम। Test is a simple test and like a class test. मॉक टेस्ट से ज़्यादा ये वाला टेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग लेते हैं। क्या लगता है ज़रूरी है कि ऐसा सेटअप में आके एक बार देख लें? बहुत ज़रूरी है कि मतलब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कैसे हमने पेपर का वो करना है, फेस करना है, क्या उस मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है। तो हर एक बच्चे को ये मैं रिकमेंड करूँगी कि ये एग्ज़ाम ज़रूर देखो, ये बहुत बेनिफिशियल होगा हर एक के लिए। Because I'll suggest everyone to try it once, as it will be helpful for them, and paying for 15,000 is a very much amount, and they must try it, and it is affordable, I think. When are you planning for your main exams? So for myself, I'm planning for April or in the first week of the May. Renu, first of all, thank you so much for your participation and feedbacks. Wishing you all the very best for your final testings. Thank you so much.